अ, ठीक है. So as we studied that the efficiency of transmission, so consider the power P1 is the input power and P2 is the output power to this optical fiber system. So the efficiency of the transmission will be the P2 by P1, the ratio of the output to the input. This is our equation number 1. And when you want to calculate this value in dB, so the dB value will be equal to apply the 10 log 10 both sides. So 10 log 10 of P2 by P1 is equal to the dB value of the efficiency. This is our equation number 2. And we also study that if the P2 is less than P1, it means that attenuation of the signal will be take place here, and the value of the dB will be negative, and this system will be lazy. كده. And if the P2 is greater than P1, it means that the dB value is positive, and this will be the gain for the such component or amplifier or any system for whose output is greater than P1. It means that it will be amplifier, and the ratio of P2 by P1 is called gain in this case. If you want to calculate the value of P2 by P1, so this is divide the equation number 2 in both sides. So dB divided by 10 will be equal to, we were doing this portion, and consider dB is equal to 10 log 10 of P2 by P1. It means that if we divide both sides by 10, so the log 10 of P2 by P1 is equal to dB by 10. And when you want to remove this log 10, so you will take anti-log both sides. So what is meant by anti-log? You will write this in the power of 10. Log 10 P2 by P1, and this will be also in 10 power of dB by 10. This means anti-log, taking anti-log both sides. This is the mathematics rule that it will cancel each other. It means we will get only P2 by P1. P2 by P1, which is equal to 10 के power dB by 10. This will be the value of that when we divide both sides by 10, so this will become like 10 P2 by P1, taking anti-log, so it will give the P2 by P1 is equal to 10 power dB by 10. It means the equation number 3 show that if we have the value of the dB, so how we will calculate the ratio of P2 by P1? And sometime if the value of the P1 is given, so how you will calculate the P2? So P2 will be equal to P1 multiplied by 10 power dB by 10. So P1 की value आपके साथ होगा and dB की value आपके साथ होगा, so you can calculate the value of the P2. So this is the equation number 2 and 3 show that how you will calculate the dB value, and if you have the dB value, so how you will calculate the ratio of P2 by P1. So let's move toward that. If the power in milliwatt, if the P2 power in milliwatt, and this one is called reference power, reference power. So if the P2 is equal to P2 milliwatt, it means that the value of the P2 in milliwatt, and we take the P1 is 1 milliwatt. If this is considered that this is 1 milliwatt, कहने का मतलब ये कि 1 milliwatt
अगर हम इनपुट दे दिए तो आउटपुट पे कितनी मिलीवाट हमारे साथ आउटपुट होगा. So if the reference value is 1 milliwatt, our P2 की वैल्यू P2 milliwatt होगा. So you will say the value of dB is equal to 10 lakh 10 P2 by P1 is called dBm value. What is mean by dBm? dB milli. This m should milli. It means that the P2 is in milliwatt and P1 is in 1 milliwatt. So if this value is 1, so it means that no need of this value. So it means that the dBm is equal to 10 lakh 10 of P2. This is the dBm value of the P2. अगर आपके साथ P2 मिलीवाट में है, P1 आपके साथ 1 milliwatt है, so it means that dB is equal to 10 lakh 10 of P2 by P1. So इसको आप लिख लीजिए dBm is equal to 10 lakh 10 of P2 by P1. अभी P2 आपके साथ कुछ वैल्यू है मिलीवाट में और P1 को हमने 1 मिलीवाट कंसिडर किया, तो 1 पे डिवीजन का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है 10 lakh 10 of P2. दिस इज दी dBm वैल्यू. लेकिन इधर आप कंसिडर करेंगे कि दोनों आपके साथ मिलीवाट में है. यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दे दे कि इसका dBm फाइंड करें, तो आप पहले दोनों पावर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिलीवाट में. तो आपके साथ तब आ जाएगा. इसी तरह अगर P2 आपके साथ माइक्रोवाट में है और P1 आपके साथ 1 माइक्रोवाट है रेफरेंस पावर, इसका मतलब होगा dB माइक्रो. This is the symbol of micro. This is not 4. This is the symbol of micro. So dB micro is equal to 10 lakh 10 at P2 by P1. P1 is 1 micro. It means dB micro is equal to 10 log of P2. This is the dB micro value of the power. There are three values: dB value, dB m value, and dB micro value. So what is mean by dB value? dB value is the 10 lakh 10 at P2 by P1. This is the dB value. अगर आपके साथ P2 मिलीवाट में है और P1 भी मिलीवाट में है, तो आपके जो कैलकुलेशन होगा वो dBm होगा. अगर दोनों आपके साथ माइक्रोवाट में है तो आपके साथ P2 by P1 का वैल्यू dB माइक्रो में होगा. इसमें स्पेशल केस अगर P1 आपके साथ मिलीवाट में है और P1 आपके साथ इधर माइक्रोवाट में है, तो dBm आपके साथ हो जाएगा 10 lakh 10 at P2 and dB micro is equal to 10 lakh 10 at P1. फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे इस तरह का है कि the P1 is 0.01 watt and the P2 is 0.050. If suppose this is 2 and suppose this is 1 watt. So calculate the dBm value. इसका dBm value आप कैलकुलेट करें. आप पहले इसको मिलीवाट में कन्वर्ट करें, तो व्हाट विल बी द वैल्यू इन मिलीवाट? 20 मिलीवाट. 1000 से मल्टीप्लाई कर तो 20 मिलीवाट एंड इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर तो क्या जाएगा? 10 मिलीवाट. So dBm वैल्यू आपके साथ इसके दो इक्वेशन मैंने लिखी है. dBm is equal to 10 lakh 10 of P2 by P1. But P2 must be in micro and P1 must be in milli. So फिर आप dBm कैलकुलेट कर सकते. अगर ये आपके साथ 1 है तो डायरेक्ट P2 लिख लो. अभी कितनी P2 कितने? 10 मिलीवाट और ये कितने? 20 मिलीवाट. यह जाएगा 10 लाख 10 आप इससे आ जाएगा क्या? 0.5. कैलकुलेटर से लाख 10 आप 0.5 करें और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, आपका जो वैल्यू आ जाएगा दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dBm. सपोज मैं इधर अपने कैलकुलेटर से कर दो.
सो इससे वैल्यू आ जाएगा 10 से, अगर मल्टी फिर लाग ले ले उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई था आपके साथ आ जाएगा आंसर -3 पॉइंट या -3 dB, लिखिए 3 dB पॉइंट इसमें कुछ नहीं। अभी इसकी वैल्यू माइनस आ रहा है, क्यों माइनस आ रहा है? अभी दलील माइनस क्यों है? हेलो सर जी दा P1 मंग सर सेवा दे P1 زمون سره سیوا ده P2 زمون سره कम ده, so that is why the यस सर value in minus. ठीक है, so अभी क्लियर हो गया ना कि जो इक्वेशन में आपको समझा रहा था। इसका समझ आ गया कि डीबी वैल्यू और आप कैसे डीबी और डीबीएम वैल्यू फाइंड करेंगे? या तक कुछ मसला तो नहीं है यहाँ से लेकर यहाँ तक? नो सर ठीक है, सो दीज आर 3 वैल्यूज। कोई आपसे जनरली भी पूछ सकते हैं कि डीबी डीबी मिली या डीबीएम और डीबी माइक्रो में क्या फर्क है, तो आपको होना चाहिए अगर डीबी वैल्यू है तो आपके साथ P2 और P1 वाट में होंगी, अगर डीबीएम वैल्यू है तो दोनों आपके साथ मिली वाट में होंगी, अगर माइक्रो है तो आपके साथ दोनों माइक्रो में होंगी। इसमें अगर आप फिर इस फार्मूले की तरफ जाना चाहते हैं कि जस्ट P2 हो तो इसका आपके साथ रेफरेंस पावर P1 आपके साथ 1 माइक्रो होनी चाहिए। इन द केस ऑफ मिलिया के साथ ये 1 मिली होनी चाहिए। अभी consider the cascaded system. What is mean by cascaded system? Do you know cascade system? एक होते हैं पैरेलल सिस्टम, एक होते हैं कैस्केड सिस्टम, एक होते हैं फीडबैक सिस्टम। समझते हो? यस सर। तो कैस्केड क्या होते हैं? सर वो जो सीरीज होते हैं बेसिकली इसी तरह के स्केट होते इस तरह, और पैरेलल हमारे साथ इस तरह होता है कि कुछ इस तरह फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखना चाहता हूँ, दिस इज दी पैरेलल एक सिस्टम है इधर, सपोज कुछ दूसरा सिस्टम है, इनको अगर आप ऐड करिए इधर, so this is parallel and this is feedback system. This is called feedback system. So consider अगर आपके साथ cascaded system है, ये this is the system number 1 and this is the system number 2 and this is the system number 3. We will apply the input to the first system and it will give us the P2, and this P2 will be the input to system number 2 and its output is P3, and the P3 is the input to system 3 and its output is P4. So this is the cascaded system. So what will be the efficiency of this system? So if we consider this is a main block, this is the main block, the input is P1 and the output is P4. So the efficiency will be the output P4 divided by P1. This is our equation number 1. अगर आप इस सारे सिस्टम को कंसीडर करें, if you consider this entire system, so the input is P1 and the output is P4. So P4 divided by P1 is the efficiency. P4 divided by P1 is the efficiency, and this is our equation number 1. It means that efficiency is equal to, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप लिख ली P4 डिवाइड बाई इधर आप लिख ली P1, इधर आपने लिख लिया P3, अब इधर आपने लिख लिया P3, तो मतलब है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकता है ना, P3 बाई कैंसिलेशन। इधर अगर आप लिख ली P2, इधर अगर आप लिख ली P2, इसका मतलब है ये
दूसरे को कैंसिल करता है और आपसे वापस आपको आ जाएगा P4/P1। इस इक्वेशन की समझ आ रही है? यस सर। क्योंकि मैंने लिख लिया P4, इधर मैंने लिख लिया P1, तो इधर मैंने P3 लिख लिया डिवीजन में, तो मल्टीप्लिकेशन में P3, डिवीजन में P2, तो मल्टीप्लिकेशन में P2। इसका मतलब है अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ, तो आपके साथ दोबारा आ जाएगा P4/P1। समझ आ रही है? लेकिन अगर आप इसको कैंसिल नहीं करना चाहते तो आपके साथ इस तरह आ जाएगा P4/P3, P3/P2 एंड P2/P1, और ये आपके साथ P4/P1 के बराबर। What is this? P4/3 P3. This is the efficiency of third system. P4 divided by P3 is the efficiency of third system. P3/P2 is the efficiency of second system. P2/P1 is the efficiency of first system. So this is our equation number 2. If we apply the 10 log 10 both sides, 10 log 10 P4/P1 is equal to 10 log 10 P4/P3, P3/P2, P2/P1. So what is this? This is the dB value of the system, dB. और ये आपको शायद मालूम होगा कि n logarithm in when you apply the log. So this is the rules of the log, that the multiplication will be changed into plus. ये आपको याद है 9th की मैथ्स में आपने शायद पढ़ा होगा। 10 log 10 of P4/P3, तो इस मल्टीप्लिकेशन को प्लस बना दी। 10 log 10 of P3/P4, इस मल्टीप्लिकेशन को प्लस बना दी। P3/P2 मल्टीप्लिकेशन को प्लस बना दिया और 10 लाख मल्टीप्लाई करें, सो 10 log 10 of P2/P1। समझ आ रही है इसकी? समझ आ रही है आपको? सर ये तो बाकी 8 होते हैं, लेकिन लास्ट वाला P2 डिवाइड बाय P1 ये मल्टीप्लिकेशन समझे, राउंड प्लस थे। मैंने क्या सर किया, देखो दिल्ला से सर ये आपके साथ है 10 log 10 of P4/P1, जिसको मैंने लिख किया dB। अभी ये log 10 of 10 इसको भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें, तो आपके साथ आ जाएगा log 10 of 10 P4/P3। इधर मल्टीप्लिकेशन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट करें, तो प्लस और log 10 of P3/P2, ये मल्टीप्लिकेशन इसको प्लस में कन्वर्ट करें, प्लस 10 log 10 ऑफ P2/P1। समझ आएगी? हाँ मजा रवा है। हेलो मजर लास्ट चौथकड़े रवा है का ना आज नूर तो आवाज क्लियर राजी? यस सर राजी। और यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है इस इक्वेशन में? ये इस इक्वेशन का समझ आ गया? यस सर। ठीक है, so this is the value of the dB, so dB is equal to, and what is this? Log 10 of 10 P4/P3, this is the dB value of last system, third system. So this is the dB value of the third system, and this is the dB value of the second system, and this is the dB value of the first system. 10 log 10 P2/P1 is dB1. dB1 means the dB value of the first system. 10 log 10 P3/P2 is the dB2, and this is the dB third. It means that अगर आपके साथ ज़्यादा सिस्टम से तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपके साथ ज़्यादा सिस्टम है तो आप लिख सकते हैं कि dB वैल्यू आपके साथ हो जाएगा dB1 प्लस dB2 प्लस डॉट डॉट प्लस dBn,
आपके साथ जितनी भी कैस्केडेड सिस्टम है, तो कैस्केडेड सिस्टम में जो लॉसेस है आइदर डीबी, इसको आप लॉसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो फॉर एग्जांपल हर एक का एफिशिएंसी है, तो उसका मतलब है कि ये आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका वैल्यू कम होती जाती है ना, क्यों? क्योंकि इसमें लॉसेस आते हैं, तो इसलिए इसको हम डीबीएस भी बोलते हैं, लॉसेस, ठीक है। तो डीबीएस अभी आ जाएगा कि हम इसको कैसे चालू करेंगे, ठीक है। So the lossy communication system, if this is a system whose PT mean the transmitted power and PR mean received power, MW mean in milliwatt, ठीक है। So P2 PT transmitted power है और PR आपके साथ के received power है। received power कम होगा किससे? ट्रांसमिटेड पावर से। इसका मतलब है इधर आपके साथ क्या आएंगे, लॉसेस आएंगे। तो लॉसेस कितना आएंगे, ये इसका जो डीबी वैल्यू है इसके बराबर होगा। इधर आपके साथ लॉसेस गिवन होगा, ठीक है, कि इसमें इतनी डीबी लॉसेस है। अभी इधर हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट दी लॉसेस। इधर लॉसेस आपके साथ गिवन है, तो आप ट्रांसमिटेड पावर कैसे फाइंड करेंगे, रिसीव्ड पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो कंसीडर a lossy communication system whose power input power is PT, yeah, either transmitted power is PT, the received power is PR, and the losses in the system is dBs। इधर जो लॉस होते हैं, इसको पावर में जो लॉस आता है, इस पावर का जो लॉस है उसको हमने डीबी में कैलकुलेट किया, तो इसको हमने डीबी इसके नाम से जाहिर किया कि डीबीएस इसका लॉसेस है। सो डीबीएस का फार्मूला क्या होगा, 10 लाख 10 आप पी आर डिवाइड बाई पी टी, सिंपल है ना। इसका पी आर डिवाइड बाई पी टी, पुरानी फार्मूला इधर जस्ट पी टू था, इधर पी वन था, तो इधर मैंने लिख लिया पी आर पावर रिसीव्ड एंड पी टी द पावर ट्रांसमिटेड। सो 10 लाख 10 आप पी आर डिवाइड बाई पी टी, ये आपके साथ क्या गया, डीबीएस के बराबर। अभी ये एक रूल है किस चीज़ का, लाख का, कि मल्टीप्लिकेशन को आप प्लस में कन्वर्ट करेंगे और डिवीजन को आप किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, माइनस में। ये आपको मालूम है, ये लाख का रूल्स? जी, इधर नहीं मालूम, वो से याद किया, याद नाइन्थ मैथ्स पे वो बोल रही। तो यह जाएगा आपके साथ डी बी एस इज इक्वल टू 10 लाख 10 पी आर, इधर डिवीजन है ना, ये डिवीजन शो करते हैं, तो इसको माइनस से कन्वर्ट करें, माइनस 10 लाख 10 पी टी पावर ट्रांसमिटेड, dbs is equal to 10 lakh 10 PR minus 10 lakh 10 PT. This is the power received and this is the power transmitted. अभी आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज आप रिसीव्ड पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये आप इधर आपके साथ माइनस है, इधर आप शिफ्ट करें तो प्लस आ जाएगा। सो dbs इज इक्वल टू, अगर चूंकि ये इधर हमने मिली वाट में कंसिडर किए, ठीक है, ये भी मिली वाट में, तो ये भी मिली वाट में, ठीक है, तो इधर इसका भी डीबीएम बोल सकते हैं कि डीबीएस इज इक्वल टू डीबीएम आर मीन रिसीव्ड माइनस डीबीएम टी, क्योंकि 10 लाख पी आर का मतलब है प्रदीप वो शोई ज्यादा संख्या की। हेलो, यस सर, सर पोश भी आबिद अली, यस सर। क्योंकि हमने एक फार्मूला लिखा था किस चीज का, डीबीएम का। डीबीएम का फार्मूला भी मैंने ड्रा किया था इस तरह, डीबीएम एक साथ करा हुआ था किस चीज का, 10 लाख 10 ओनली P2, इधर हमारे साथ रेफरेंस किया था 1 था, तो इसलिए हम इसको होते हैं 10 लाख 10 PR। अगर PR आपके साथ मिली वाट में, तो डीबीएम इसका हो जाएगा डीबीएम आर माइनस 10 लाख 10 PT। तो चूंकि PT मिली में है, तो इसलिए मैंने कहा माइनस डीबीएम, और टी का मतलब है ट्रांसमिटेड। अभी इसको मैंने यहाँ से शिफ्ट करना है इधर, तो dBm R is equal to dBs plus dBm T।
और ये सिंपल तरीकाकार भी है कि अगर ट्रांसमिटेड पावर का dBm वैल्यू ये है और इसमें लॉसेस इतनी आ रही है, तो लॉसेस इसके साथ जमा करें तो आपके साथ क्या हो जाएगा, रिसीव्ड पावर होगा। यस सर। ठीक है, सो ये आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये आपके साथ इसमें से कुछ वैल्यू माइनस होंगे तो इसलिए ये प्लस प्लस में आ रहा है। ठीक है, सो ये फार्मूला आपने डिराइव किया कि dBm R इज इक्वल टू dBs प्लस dBm ट्रांसमिटेड। सो अभी तक आपने ये पढ़ लिया। अभी इसका शॉर्ट रिव्यू, क्योंकि अभी भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये होनी चाहिए कि एक पॉइंट आपको ये याद होनी चाहिए कि dB वैल्यू इज इक्वल टू 10 लाख 10 P2 by P1। दिस इज द dB वैल्यू। अगर आपको dB गिवन है, आप P2 by P1 फाइंड करना चाहते हैं तो आपके साथ फार्मूला होगा P2 by P1 इक्वल टू 10 के पावर dB by 10। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। एक वैल्यू आपके साथ है कि dBm इज इक्वल टू 10 लाख 10 इंटू P2 dB माइक्रो, ये आपके साथ इसके बराबर। केस क्रेडिट में आपके साथ ये फार्मूला है कि dB इक्वल टू dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 एंड सो ऑन। ये हमने एक फार्मूला डिराइव किया। इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन हमने ये फार्मूला डिराइव किया कि dBm R इज इक्वल टू dBs प्लस dBm ट्रांसमिटेड। समझ आ गया? ये आपके साथ कुछ फार्मूले हमने डिराइव किए जो कि आपके काम आएगा। So consider the example 1.1. In example 1.1, the input power to the system number 1 is P1, which is the 5 into 10 to the power minus 3 watt. And the losses of the first system is minus 11 dB. Minus mean that the power will be less than this power. And the losses in the second system is minus 6 dB. And the losses in the third system is minus 3 dB. Calculate the output power P2. ये जो लास्ट पावर है आपने इसको कैलकुलेट करना है, और इसका जो इनपुट पावर है आपके साथ 5 into 10 के पावर माइनस 3 वाट है। इसमें लॉसेस इतनी है, इसमें लॉसेस इतनी है, इसमें लॉसेस इतनी है। कहने का मतलब है कि if you consider this is a whole one system, it means that P2 by P1 आपके साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये एक सिस्टम है तो इट मीन dB इज इक्वल टू 10 लाख 10 P2 by P1। ये फार्मूला था। अभी इसको एक सिस्टम बनाना कैसे आप बनाएंगे, तो इसके लिए हमने फार्मूला लिखा कि dB टोटल लॉसेस विल बी इक्वल टू, टोटल लॉसेस का फार्मूला अभी मैंने लिख लिया। वो क्या था टोटल लॉसेस का फार्मूला? dBs इज इक्वल टू व्हाट, dB1 प्लस dB2 प्लस dB3। तो dB1 कितने हैं? माइनस 11 माइनस 6 माइनस 3, इनको ऐड कर तो क्या आएगा माइनस 20 dB। इसको अगर आप इस लिख लिखे कि these are the losses dBs। इसका समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। अभी आपको ये तो गिवन हो गया। अब दूसरा भी आपके साथ गिवन है कि P1 इज इक्वल टू 5 into 10 के पावर माइनस 3 वाट। ये आपके साथ ये पावर गिवन है। आपने क्या कैलकुलेट करना है? P2। तो हमने एक dB से पावर कैलकुलेट करने का एक फार्मूला लिखा था। वो क्या था? ये फार्मूला था कि आपने P2 by P1 इज इक्वल टू 10 के पावर dB by 10। इधर मैंने माइनस इसलिए लिख लिया क्योंकि ये पहले से माइनस है। तो अगर आप जस्ट dB by 10 लिख ली फिर माइनस लिख ली तो कोई बात नहीं है। ठीक है,
P2 by P1 is equal to 10 के पावर dB by 10, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। यस सर। तो P2 is equal to P1, इधर डिवीजन में इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो P1 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर माइनस dB by 10। अभी देखिए P1 की वैल्यू कितने, 5 into 10 के पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर dB, dB की वैल्यू कितनी, 20 -20। हाँ, तो 20 डिवाइड बाई 10, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा -2। तो इसलिए मैंने लिख लिया 5 into 10 के पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर -2। तो अभी ये आ जाएगा क्या, -3 और -2 से क्या जाएगा -5, तो 5 into 10 के पावर -5 वाट। तो इनपुट पावर क्या था, 5 into 10 के पावर -3 वाट, और आउटपुट पावर कितने, 5 into 10 के पावर -5 वाट। अभी ये स्मॉलर है ना इससे, ठीक है, समझ आ रही है। और इसके यस सर। अगर इसका वेरिफिकेशन भी करना चाहते हैं तो इस फार्मूले में अगर आप लिख ली 10 लाख 10 of P2, P2 कितने, 5 10 के पावर -5, P1 कितने, 5 10 के पावर -3, 5 के साथ ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो -5 + 3 इट मीन -2 लाख का फार्मूला ये इधर आ जाएगा, तो -2 मान ये, चलो मैं आपको इस तरह करता हूँ, ये बहुत अहम बात है। अगर आपको मैं इधर कर दूँ, अभी फॉर एग्जांपल टोटल लॉसेस मेरे साथ कितनी आई थी, -20 dB, -20 dB। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये भी जो मैंने ये आंसर लिया है ये गलत है, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि dB इज इक्वल टू 10 लाख 10 of P2 by P1, P2 by P1, so 10 lakh 10 P2 कितना था, 5 10 के पावर -5, अभी मैंने कैलकुलेट किया, और इनपुट क्या था, गिवन था 5 10 के पावर -3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो बताइए जी कंज 12 कीजिए तो पावर आपके साथ क्या होते हैं, प्लस हो सकते हैं 10, सो 10 की पावर -5 + 3, -5 + 3 से आ जाएगा क्या, -2 -2, 10 लाख 10 के पावर -2। ये लाख की कानून है कि जो पावर होगा वो सामने आ जाएगा, जो पावर होगा वो सामने आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड लाख 10 ऑफ 10, और लाख 10 ऑफ 10 किस चीज के बराबर होते हैं, 1 की, लाख 2 ऑफ 2, लाख 4 ऑफ 4, लाख 10 ऑफ 10 ये 1 के बराबर होगा, सेम लाख 1 के बराबर होते हैं, तो ये जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस -20, जरा कि -20, समझ आ रही है। यस सर। तो एक क्वेश्चन को हमने तकरीबन 2 तरीकों से हल किया। एक तो आपके लिए मैंने इस तरह कर दिया कि एक किस्म अगर आप इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं तो वेरिफिकेशन भी है, अगर आपको इसको दूसरे अंदाज में क्वेश्चन सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह भी है। So this is the
your first question. If you consider the second question, in second question, that a system has minus 3 dB of losses. एक सिस्टम है इसके कितने लॉसेज है? माइनस 23 dB इसका लॉसेज है. तो लॉस इज इक्वल टू dBs इज इक्वल टू माइनस 23 dB. अब क्या कैलकुलेट कर रेशो कैलकुलेट करें, P2 by P1 रेशो कैलकुलेट करें. P2 by P1 रेशो, ये तो सिंपल है. तब क्या करें, अब इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करें. सो P2 by P1 is equal to 10 के पावर dB by 10, ये फार्मूला था. सो आप लिखिए 10 के पावर माइनस 23 by 10, ये जगह 10 के पावर माइनस 2 by 3, क्योंकि 23 को 10 से डिवाइड करें तो 2 by 3 आते हैं. इसको आप कैलकुलेटर से करें तो आपका जाएगा 0.005. दिस विल बी द रेशियो ऑफ P2 by P1. इसको अगर आप परसेंटेज में लाना चाहते हैं तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करिए. 10 नहीं है, ठीक है, इसको ठीक करें. रुहुल्लाश्ता ठीक है. तो ये आपके साथ 100 हो जाएगा. सो 100 से मल्टीप्लाई करता है, आपके साथ आ जाएगा 0.05%. 0.05%. So this will be the efficiency of your system. Simple enough. Yes, sir. Consider the another example. The P1 mean the transmitted power is 2 milliwatt. The dBs is minus 23 dB. Calculate the dBm of receiver. This is mean to calculate the dBm of receiver. So पहले आपको जो फार्मूले मैंने लिखा है उस तरह था कि dBm R is equal to dBs plus dB transmitted. So अभी ये जो P1 है ये तो आपके साथ इसी तरह है, ये तो आपके साथ dBm में नहीं है ना. तो दे dBm क्या होने दे, समझ आ रही है? यस सर. क्वेश्चन का समझ आ रही है? Yes, sir. क्वेश्चन को अगर आपको समझ नहीं है तो मैं इस तरह आपको ब्लैक Yes, sir. डायग्राम से समझाता हूँ कि क्वेश्चन इसका इस तरह है. क्वेश्चन इस तरह है कि आपके साथ ट्रांसमिटेड पावर है PT और आपके साथ है PR और आपके साथ है dBs. सो dBs आपके साथ कितनी है, PT आपके साथ है 2 मिलीवाट. आपने PR को कैलकुलेट करना है लेकिन dBm में कैलकुलेट करना है, dBm में, ठीक है, dBm R. सामने ये बात मैं लिख रहा कि dBm R इज इक्वल टू dBs प्लस dBt. अभी ये जो dBt है ये आपके साथ तो dBt में नहीं है, आपके साथ वाट में केवल है, इसका आपको dBm में कन्वर्ट करना है, ठीक है, dBm में. तो dBm की रखिए dBmt मीन dBm वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेड इक्वल टू 10 लाख 10 ऑफ P1. सो 10 लाख 10 ऑफ P1 की वैल्यू कितने है, 2. 10 लाख 10 ऑफ 2. इसको अगर आप करें तो इसे आ जाएगा क्या, प्लस 3 dB. प्लस 3 में 3 dB को समझ लो, तो भाई dBm लिखे. हाँ अपडेट dBm. अभी आपने इधर लिखने कि dBm R इज इक्वल टू dBs प्लस dBt. तो dBs कितने, माइनस 23 प्लस 3, इसे आ गया क्या, माइनस 23 ने जिदा ले तो माइनस 20 रह जाएगा. माइनस 20 साथ सरा ले dBm वैल्यू माइनस 20 से सारे dBm वैल्यू, उसको तो एग्जैक्ट पावर कैलकुलेट के. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पावर अभी माइनस 20, तो dBm इज इक्वल टू 20 लाख 10 ऑफ P2. P2 आपके साथ आ जाएगा, इसको भी 10 से डिवाइड करें, इसको भी 10 से डिवाइड करें तो dBm by 10
इन टी लागलेली to 10 की power dBm by 10. So 10 की power किधर है -20 डिवाइड बाई 10 -20 डिवाइड बाई 10 से आते हैं -2 -2 के साथ है 0.01 मिलीवाट समझ आ गया Yes, sir. अरे क्वेश्चन पूछ भाई Yes, sir. Pois bhi.